Hello students, welcome to your Pedia. I am Jitendra Tyagi. So a very good opportunity has again come, that is from IIT Madras. All of the students who pursue their BTech or MTech or MSc or many other courses, they all have a dream of studying sometime in IIT Madras, right? And especially if we talk about MS program. So in all IITs, MS program at IIT Madras is considered to be one of the best. Okay, it has NIRF ranking 1, so very prestigious college, and it has all the modern research facilities in all the areas, like in VLSI sector, in artificial intelligence, everywhere, in healthcare sector, biomedical, energy sector, electrical vehicle, everywhere, in all areas, all modern research facilities are available at IIT Madras. Okay, so IIT Madras provide admissions to the students in PhD program as well as MS program twice in a year. Okay, so earlier they provided admissions to the students in summer, and now winter admissions are open. Okay, so those who did not get admission anywhere, okay, they have a very good opportunity in hand right now. They can try, they can join this MS program or PhD program, direct PhD program. Okay, and those who join somewhere in some normal college, if they consider that for safety, for security, just take admission. Okay, but they have dream of studying in top college, then they can also try for this opportunity. Okay, so let us discuss about this research admission brochure. This you can find, you can write in Google IIT Madras MS. Okay, write in Google IIT Madras MS, then you will find this PDF and this link entire. Okay, this website will open, right? So last date of receipt of online application is 31st of October up to 5 PM. Note down this. Okay, 31 अक्टूबर से पहले आपको अप्लाई करना है, and they are going to conduct written test and interview. Okay, or written test or interview. Okay, that may be decided later. So intimation on written test and interview or interview indicating the date, time and venue will be communicated by the respective departments through email to the shortlisted candidates. Okay, so first of all you fill the form, and then they will shortlist you on the basis of your academics, and then you have to go for a written test or interview or both, right? So this is the mode of selection. No hard copy application will be entertained. Okay, you need not to send any hard copy. Okay, just online you have to fill the form. Now we can see the application fee. Application fee is for general, EWS, OBC, NCL male candidate 1000, for transgender 1000. Okay, and for female candidate of all category it is 500, right? And for SC ST it is 500, for PWD it is 500. Okay, and candidates who wish to apply to multiple departments. Okay, there may be some student who want to apply in different departments. So those who wish to apply to multiple departments or research programs should register individual application and pay the application fee separately. Okay, subject to fulfilling the eligibility criteria for applying to the concerned department or research program as mentioned in the research admission brochure. The OBC certificate and income and assessment certificate for EWS issued after 1st April 24, okay, in the prescribed format must be submitted. ये भी एक इशू रहता है स्टूडेंट्स को कि अपना OBC सर्टिफिकेट या EWS सर्टिफिकेट कब बनवाना है, तो लेटेस्ट चाहिए होता है 1 अप्रैल के बाद का रिक्वायर्ड होगा, वो आप अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है. नाउ लास्ट डेट ऑलरेडी डिस्कस्ड. सो ये पूरा PDF है, इसमें इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप रीड कर सकते हो. अभी हम बात करते हैं जैसे फाइनेंशियल असिस्टेंस, तो वहाँ पे मिलता ही है. आप PhD में जाएंगे या MS में जाएंगे, इन बोथ केसेस यू विल गेट स्टाइपेंड. ओके, प्रोवाइडेड यू हैव ए गेट स्कोर. नाउ देयर इज सम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आल्सो मेंशन इन दिस PDF, और अलग अलग कैटेगरीज हैं, तो आप उनके पूरा इस PDF को ध्यान से पढ़ेंगे
बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। अभी मैं बात करना चाहता हूँ अबाउट द क्राइटेरिया। ओके, मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस फॉर एडमिशन, ठीक है। सो देखो यहाँ पे पीएचडी के लिए ओपन है। सो पीएचडी इन इंजीनियरिंग के लिए अगर आपने मास्टर्स किया हुआ है एमटेक एमई, ओके, विद गुड एकेडमिक रिकॉर्ड, यू आर एलिजिबल। ओके, एंड एमएससी 2 ईयर एमएससी फ्रॉम आईआईटीज, ठीक है, विद 8 सीजीपीए आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम क्वालिफाइंग इन द नेशनल लेवल एग्जाम। तो जिनका आईआईटी से एमएससी है और 8 सीजीपीए है, वो विदाउट गेट एग्जाम ये यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट्स विद मास्टर्स डिग्री इन साइंस विद ए गुड एकेडमिक रिकॉर्ड and of exceptional merit are eligible for the relevant engineering disciplines as decided by the department. Candidate must have a valid GATE score, okay, तो masters वाले भी कर सकते हैं। And in case of candidate with bachelor's degree in engineering and possess more than 5-year relevant work experience after the master's degree in engineering, okay, the requirement of test score may be waived off by the selection committee, okay। तो ये क्राइटेरिया को ध्यान से पढ़ना है। एंड यहाँ पे आप जा सकते हैं पीएचडी इन डाटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कैंडिडेट नीड टू हैव कंप्लीटेड ए पीजी डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी। ओके, तो पीएचडी कर सकते हैं डाटा साइंस में आप, पीएचडी साइंस का क्राइटेरिया है। ओके, एंड पीएचडी ह्यूमैनिटीज में आप ट्राई कर सकते हैं। पीएचडी इन मैनेजमेंट बहुत अच्छा ऑप्शन होता है, ठीक है, तो पीएचडी मैनेजमेंट में भी आप ट्राई कर सकते हैं, राइट। एंड देन यहां पे देखो 5.1.2 एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कैंडिडेट्स हु हैव क्वालिफाइड फॉर द अवार्ड ऑफ बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग, ओके, ऑफ 4 ईयर ड्यूरेशन विद एक्सेप्शनली गुड एकेडमिक रिकॉर्ड इन एन एलिजिबल डिसिप्लिन विल बी कंसिडर्ड फॉर डायरेक्ट पीएचडी प्रोग्राम। अगर आपने बीटेक किया हुआ है तो आप डायरेक्ट पीएचडी के लिए जा सकते हैं, ठीक है। और उसके लिए क्या क्राइटेरिया है, बीटेक डिग्री होल्डर ऑफ सीएफटीआई। अगर आपका सीएफटीआई से बीटेक है, सीजीपीए 8 है, या फिर विद एक वैलिड गेट स्कोर। ओके, आप अगर आपके पास वैलिड गेट स्कोर है तब भी आप जा सकते हैं, ठीक। बीएस रिसर्च 4 ईयर डिग्री होल्डर ऑफ सीएफटीआई, ओके, 8 सीजीपीए और विद ए वैलिड गेट स्कोर यू कैन अप्लाई। सीएफटीआई वाले बच्चों को काफी रिलैक्सेशन मिलते हैं। बैचलर्स डिग्री होल्डर इन इंजीनियरिंग विद ए मिनिमम ऑफ सीजीपीए ऑफ 8, ओके, और इक्विवेलेंट फ्रॉम एनी अदर यूनिवर्सिटी एंड हैविंग ए वैलिड गेट स्कोर। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो यहाँ पे अगर आप सीएफटीआई से नहीं हैं, ठीक है ना, ओके, लेकिन आपका सीजीपीए 8 है और आपके पास एक वैलिड गेट स्कोर है, देन यू कैन अप्लाई फॉर डायरेक्ट पीएचडी। यहाँ पे सीजीपीए 8 इज रिक्वायर्ड, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओके। और अगर आप सपोज बीटेक हैं, 8 सीजीपीए है आपका और किसी R&D ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं, ठीक है, देन आल्सो यू कैन अप्लाई। ये एक्सटर्नल कैटेगरी के लिए होगा लेकिन फिर ये, ठीक है। और उसके अलावा मतलब बीटेक वाले बच्चों को गेट चाहिए यहाँ पे, ये मेन पॉइंट है आपका। दूसरा हम बात करेंगे अभी एमएस प्रोग्राम के लिए, ठीक है, जो काफ़ी बच्चे चाहते हैं एमएस के बारे में नॉलेज लेना। तो एमएस आईआईटी मद्रास का अपने आप में बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। और कैंडिडेट विद बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग, ओके, जो किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से है, 4 ईयर बीएससी किया हुआ है, 4 ईयर बीएस डिग्री किया हुआ है आईआईटीज का या सीएफटीआई का, ठीक है, और ए मास्टर्स डिग्री इन एप्रोप्रिएट इंजीनियरिंग विद ए वैलिड गेट स्कोर विद ए गुड एकेडमिक रिकॉर्ड इन द रेलिवेंट एरियाज। तो यहाँ पे आपका अगर बीटेक के बाद आप जाना चाहते हैं एमएस प्रोग्राम में तो गेट स्कोर इज रिक्वायर्ड, ओके, गेट इज इंपॉर्टेंट, राइट। उसके अलावा एएमआई स्टूडेंट्स भी यहाँ पे एलिजिबल हैं अगर आपके पास वैलिड गेट स्कोर है, राइट। 4 ईयर बीटेक कैंडिडेट फ्रॉम सीएफटीआई विद ए सीजीपीए ऑफ 8 आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर एमएस प्रोग्राम विदाउट वैलिड गेट स्कोर। तो सीएफटीआई के लिए यहाँ पे रिलैक्सेशन है। अगर आपका बीटेक सीएफटीआई से है और आपके पास गेट स्कोर वैलिड नहीं है, आप अप्लाई कर सकते हैं एमएस प्रोग्राम में भी। लेकिन बाकी बच्चे जो नॉन सीएफटीआई वाले हैं उनको वैलिड गेट स्कोर चाहिए आपको, ठीक है ना। और जो ये पार्ट टाइम, एक्सटर्नल और जो प्रोजेक्ट वाली कैटेगरी होती है अलग से, ठीक है, वो विदाउट गेट वो बच्चे अप्लाई करते हैं एनएसटीआरए कैटेगरी में। लेकिन वो पार्ट टाइम, एक्सटर्नल या प्रोजेक्ट वाले जो ऑलरेडी प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं वहाँ पे, उनके लिए होता है, ठीक है। जैसे आईआईटी मद्रास में अगर ऑलरेडी किसी प्रोजेक्ट में आप काम कर रहे हैं तो उनकी कुछ सीट्स अलग से होती हैं, वहाँ पे गेट की रिक्वायरमेंट नहीं होती।
अब यहाँ पे MS इन डाटा साइंस और AI है, इसके लिए भी आप देख सकते हैं क्या क्राइटेरिया है। वैलिड गेट स्कोर आपका होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में। अगर आपके पास वैलिड गेट स्कोर है इन एनी डिसिप्लिन, यू आर एलिजिबल। ओके, MS प्रोग्राम इन डाटा साइंस के लिए। ओके, और 4 ईयर UG डिग्री है IIT से, CFTI से या किसी भी कॉलेज से, और साथ में वैलिड गेट स्कोर, तो आप अप्लाई कर सकते हैं डाटा साइंस में। मैकेनिकल में भी स्कोर है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, राइट। देन MS इन मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट में भी MS कर सकते हैं अगर स्टूडेंट्स, ठीक है। कोई भी आपका बैचलर्स डिग्री है और गुड गेट स्कोर इन नेशनल लेवल पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन क्वालिफाइंग एग्जाम सच एज गेट, ठीक है, फॉर STRA कैटेगरी, तो इसमें भी वही गेट का क्राइटेरिया है, सेम क्राइटेरिया रहेगा। यहाँ पे एक MS इन एंटरप्रेन्योरशिप का प्रोग्राम भी होता है, काफी अच्छा है ये भी, इसमें भी आप ट्राई कर सकते हैं, राइट। तो ये मेन कंडीशंस थी। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं PDF के अंदर कि किस डिपार्टमेंट में ब्रांच वाइज क्या क्राइटेरिया है और कौन कौन से रिसर्च एरियाज हैं, राइट। सो इसको आगे फर्दर आप पूरा स्टडी करें और हर डिपार्टमेंट में आप चेक कर सकते हैं कि क्या एलिजिबिलिटी है फाइनल ब्रांच वाइज और क्या आपका उसका क्राइटेरिया रहेगा, ठीक है। तो ये क्या क्या स्पेशलाइजेशन उसके अंदर है डिपार्टमेंट के अंदर, ओके, कितनी चॉइस आप फिल कर सकते हो, सारी डिटेल इस PDF में है। अब देखो विंटर एडमिशन चल रहे हैं और बहुत सारे IITs ने रिलीज किए हुए अपने फॉर्म्स, तो अभी बच्चे कंफ्यूज हैं कि कहाँ कहाँ पे अप्लाई करें, कैसे करें, क्या क्या प्रोसीजर है। तो मैं आपको बता दूं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यूरोपीडिया प्रोवाइड करता है काउंसलिंग प्रोग्राम, पोस्ट गेट काउंसलिंग प्रोग्राम, समर में भी और विंटर में भी, ठीक है। तो विंटर के लिए स्टूडेंट्स ने स्टार्ट कर लिया है ज्वाइन करना। डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप इन सारे स्टूडेंट्स के लिए बन रहे हैं, ठीक है। ऑलरेडी स्टूडेंट्स उसमें आ चुके हैं बहुत सारे, जो उनको जितने भी डाउट्स आते हैं फॉर्म फिलिंग से, SOP से रिलेटेड, उनकी जो क्वेरीज हैं वो हैंडल की जाती हैं। तो आप विंटर एडमिशंस का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारी छोटे छोटे पॉइंट्स आपके माइंड में रेज होते हैं। इंटरव्यू के टाइम पे आप जाएंगे तो क्या प्रिपेयर करना है, कौन से सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, और पुराने बच्चों के साथ इंटरेक्शन, बहुत सारी एक्टिविटी जो पोस्ट गेट काउंसलिंग का पार्ट होती हैं। तो विंटर एडमिशंस के लिए वो अभी ओपन है, यू कैन ज्वाइन व्हाट्सएप ग्रुप, उससे आपको कनेक्टिविटी बनेगी बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ में, और दूसरा आपकी बहुत सारी क्वेरीज हैंडल हो जाएंगी, राइट। सो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन करिए, पोस्ट गेट काउंसलिंग विंटर एडमिशन बाय यूरोपीडिया। ओके, ऑल द बेस्ट।